आज मैं आपके सामने लेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, which is really one of the complicated subjects that I have ever read in 43 years of my life. I'm 43 years, 23 years of work experience. I have 2 kids, 1 wife. You see, anything about wives, everybody starts laughing. So I said, okay, let's push this in today. But the subject of Leshya that I'm going to be speaking about, ladies and gentlemen, has a history behind why I chose this subject. But before I can talk about it, I'd like to acknowledge all the gurus who are over here, Sadhu Santvis, Shramnijis, my own teachers. Dr. Jitu Bhai is here from Ahmedabad. There will be some doctors, there'll be some healers, there'll be some scientists over here, educationalists, there are business people over here, Atul Bhai Dari, Rajlal Shah from Mumbai, from whom I've learned so much in my life. And I stand over here today to talk about subjects that they have taught me. So ladies and gentlemen, it is really an amazing honor to be talking on a stage where your guru is listening to you, not because they want to learn, but they want to test how good I have been. So if I have missed out somewhere, they can improve me again in the future. I'm talking on this subject called Leshya, and I said it's profound because you know what? Everywhere you go, you find illness, physical illness, mental illness, and you also have the illness which is impacting the soul. And everybody's looking for solutions, all sorts of solutions, from medical science to different kind of healing systems. And when I was researching on each of these subjects, I could not find a Jain solution, which is so simple for somebody just to pick up and start using it and spread it among the world. It surprises me that Jainism, which is one of the most profound religions in the world, which has the minutest detail of every problem and the solution, why isn't it being spoken about? Why is it that people don't know about this? And I said, this is a good topic, but how did I stumble on the topic is also interesting. I actually wanted to speak today on the topic of DNA and karma philosophy, which requires another 3 years of my preparation. I only had 3 months. I was asked by the Terapan Samaj in Bangalore to conduct a session on 3rd of August for the NI summit that's happening under the leadership of Acharya Mahashramanji. And I always prepare for my subjects. And I said, send me some content about Terapan that I can understand. And they sent me many books. One of the books was this, Transform Yourself by Acharya Mahapragyaji. I got this book and I started to read it and I found a word called Leshya and I said, wow, this is amazing. And it had a word called healing. I said, healing, Jainism, this is amazing. Let me just learn more about it. And I said, this is interesting. So 3 months back, I got this book. I started to read and मुझे पता था कि अगर मैं आज आपके सामने इस मंच के ऊपर आके बोलूं और सिर्फ ज्ञान जो पड़ा हुआ आपके सामने दूं तो शायद आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे और जैन धर्म की जो महानता है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो 3 महीने मैंने इस सब्जेक्ट को अपने जीवन के ऊपर अपनाया। मेरा खान पान चेंज किया, मेरा सोने के जो घंटे हैं वो चेंज किए, मेरे सांस लेने का तरीका चेंज किया, मैंने अपने फोटोग्राफ्स बनवाए, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, मैंने अपना बॉडी कॉम्पोजिशन इंडेक्स टेस्ट करवाया टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम. And every 3 months, I kept checking whether there is a change in my body, whether there's a change in my chemicals, whether there's a change in my life, my way of living. So much so that when I came over here, everybody in India said, Rahul, you'll not be able to maintain this in US. And I want you to know this, that even as you all are enjoying the amazing food that the lady spoke about, I am cooking my own food in my own room because I am committed to do this session for you today. Mahavir Prabhu says, तुम मुझ जैसे बन सकते हो. But you know what? You need to understand. If Mahavir says, तुम मुझ जैसे बन सकते हो, so there is a process associated with that for you to become from Atma to Paramatma. What we all want is that same result. And therefore there's a desire. But nobody really wants to follow every step that Mahavir spoke about. And that is where the problem is. If we really want to become Mahavir, if we really want to become Paramatma, we have to understand the very basics and we have to get into implementation of those basics to achieve great results. Leshya is not an easy topic, cannot be. I think people need to, जब लोग 100 से 1000 घंटे का प्रवचन सुनते हैं तो वो जाके काबिल बनते हैं कि वो Leshya सब्जेक्ट को समझ भी पाए. So it's not easy, मगर मैंने इस सब्जेक्ट को आपके सामने लिया. It was a challenge. This is Rahul Kapoor, a motivational speaker, जो आके हंसाता है, रुलाता है, जगाता है, मगर आज ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ. आज सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ आया हूँ, आपके सामने महावीर प्रभु का ज्ञान, बस सिर्फ महावीर प्रभु, नो राहुल कपूर, जस्ट महावीर प्रभु. तो ये गुरु भगवंत है जिनकी किताब मैंने पढ़ी और आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ. मगर आज इस मंच के ऊपर मैं ये प्रेजेंटेशन मेरे गुरु को भी अर्पित करता हूँ, श्री वल्लभ जी बंसाली, जो इनाम सिक्योरिटी के फाउंडर है. मगर
राहुल कपूर वर्जन 2 के भी फाउंडर है। अगर आज मैं आपके सामने हूं तो उनके कारण, बिकॉज मैं अंदर की भीतर की दुनिया को समझ पा रहा हूं, उसको देख पा रहा हूं और महावीर प्रभु की बातों को समझ पा रहा हूं और आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अगर आपकी उम्र 43 ईयर्स से ज्यादा है तो हाथ ऊपर करिए प्लीज, आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद लेके प्रोग्राम करूंगा। नीचे है तो हाथ ऊपर करिए प्लीज, बिलो 43, रेज योर हैंड्स अप प्लीज, क्विक, वेरी क्विक, से हाई। Lots of youngsters over here, and it's my responsibility to help you connect with Jainism, because you know what? You will be the torchbearer, and my responsibility today is for you guys. Let's do this. Even if it's 1, 5, 10, we're going to do a great job. तो ये सब्जेक्ट मैं आपको समझाऊं उसके पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। So let's simplify it. मैं साइंस का यूज करूंगा, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों का, यानी कि ज्ञान, मनोविज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, तीनों को साथ में जोड़ के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बातें जाए। लेश्या होता क्या है? What is लेश्या? लेश्या को समझने के पहले क्या आप कौन हैं, हम कहां पर हैं, वो बात करेंगे। यहां पर थे सदगुरु, और सदगुरु ने कहा कि that's universe, this is the planet, in that planet there's America, in America there's Los Angeles, in Los Angeles there is convention center, in the convention you are sitting in this body. You remember that? Yes or no? Come on, say yes, no. That much you understand. The only thing that he said, which was very profound, and he said, you know, महावीर प्रभु, आदिनाथ प्रभु होते तो वो जाते गांव-गांव 10-12 लोग सीखते, तो टेक्नोलॉजी से आज हम लोगों तक पहुंच सकते, करेक्ट? The only small correction with your permission is this: महावीर प्रभु वाणी से नहीं, दिव्य वाणी से बात करते थे, तो मनुष्य नहीं, प्राणी भी उनको सुन सकते थे, समझ सकते थे, जी सकते थे। That's Mahavir for you. Let's celebrate Bhagwan Mahavir, ladies and gentlemen. I'm a big fan of Mahavir, and I love Mahavir, and my only objective is to show you the power of this man, the power of who he is, Paramatma. So, ladies and gentlemen, till here we understand the world, the planet, America, Los Angeles Convention Center, body. You understand this. This is where Mahavir Prabhu's Gyan begins, and I take you into Leshya. Can I have the slides on? So, this is really what we all understand, right? We have this muscular system through which your body functions. सबको मस्कुलर सिस्टम समझ में आता है? यस और नो, हाथ ऊपर करके यस नो बोलिए। ऑसम। मस्कुलर सिस्टम से थोड़ा अंदर जाएंगे तो नर्वस सिस्टम आएगा, जिसके अंदर 3 चीजें हैं: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। यू अंडरस्टैंड दैट? इफ यस, रेज योर हैंड्स अप, से यस। Yeah, I'm keeping you alive and keeping you with me. This is a technical subject. Let's understand this well. After the nervous system comes your endocrine system. थोड़ा टफ है ये। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे आपका पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, या एड्रेनलिन ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड्स है, ये करते क्या है? ये ग्लैंड्स आपके शरीर के अंदर केमिकल्स पैदा करते हैं। कोई डॉक्टर्स है यहां पर? राइट सर? केमिकल्स पैदा करते हैं। कोई भी केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको तकलीफ आती है, जैसे थायराइड। तो थायराइड है क्या? एक केमिकल का इम्बैलेंस हो गया, करेक्ट? या किसी किसी को समझ लो कि डायबिटीज आती है, तो क्या हुआ कि आपका जो एक प्रोसेस है केमिकल बनने का, ग्लूकोज का, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। एनीवे वेयर देयर इज अ इम्बैलेंस, द इम्बैलेंस ऑफ द केमिकल नॉर्मली हैपेंस थ्रू द ग्लैंड्स. It is experienced through the nervous system, and the impact of that is on the muscular system, which is your body. Clear? If everybody understood this, raise your hands up and say yes loudly. No doubt so far. All this is easy to understand because you can touch, feel, see this. ये सब आसान है because आप ये समझ सकते हो, क्योंकि आप इसको महसूस कर सकते हो, देख सकते हो. इसके आगे जो होने वाला है वो शायद आप समझ नहीं पाओगे, और वहां से शुरुआत होती है लेश्या के सब्जेक्ट की, लेडीज एंड जेंटलमैन. और वही मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने आया हूं. मगर उसके पहले बता दूं कि जब ये एंडोक्राइन सिस्टम आपका खराब होता है या सही होता है, तो जो केमिकल का इम्बैलेंस होता है, वो कितने केमिकल्स आपके शरीर में काम करते हैं. दिस इज द स्लाइड. कुछ 6 ऐसे केमिकल्स है which is 99% of your chemicals in the body. 65% is oxygen, carbon is 18%, hydrogen is 9.5%, and so on and so forth. बाकी के ये साइड में जो है वो only 1% है. 60 other chemicals आपके शरीर में काम करते हैं, और आप एक दिन में 15.7 लीटर्स ऑक्सीजन आप रोज लेते हैं इस शरीर में. 15.7 liters of oxygen you breathe every day. So that the body functions. If there's a small imbalance, even for like 5 minutes, there's too much of carbon dioxide coming in. You can't manage it. You can't take it.
नाउ द क्वेश्चन इज, राहुल ये केमिकल्स आते कहां से? खान पान से, एनवायरमेंट से? ऑफ कोर्स यस, जो बाहर की दुनिया आपको दिखाई देती है। मगर आज मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये केमिकल्स बाहर से नहीं, अंदर से भी आते हैं, जो महावीर प्रभु ने फरमाया है। जो आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपके होश छूट जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपने कितनी गलतियां की, हमने कितनी गलतियां की एक साथ, और आज हम उन गलतियों को सुधार कर एक नया जीवन जी पाएंगे। कोशिश तो करेंगे जरूर। केमिकल्स को समझ गए आप? अब मैं आपको लेके जाऊंगा लेशिया के इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो लेशिया के सब्जेक्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो आप प्रवचन में सुनते हैं वो उसको पहले समझाऊंगा। उसके बाद हमारे जो भीतर होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो समझाऊंगा। एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लाइव एक्सपेरिमेंट्स के साथ समझा के आई एम गोना टेक यू डीपर डाउन इन द सब्जेक्ट। ये छोटी सी स्टोरी पहले समझा देता हूं, फिर हम लेशिया के सब्जेक्ट में जाएंगे। ये स्टोरी है 6 फ्रेंड्स की जो बाहर जाते हैं एक जंगल में घूमने के लिए। वो 3 दिन घूम के फिर भटक जाते हैं, उनको पता नहीं कि बाहर आने का रास्ता कैसे है। तो वो, उनके पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो 3 दिन से भूखे हैं। उनको एक पेड़ दिखाई देता है, वो पेड़ के पास जाके कहते हैं, ओ वाओ, ये पेड़ के ऊपर फल है तो हमें खाना है। तो 6 फ्रेंड्स है, वो 6 फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आई विल टेल यू। द फर्स्ट फ्रेंड सेज, लेट्स कट द ट्री, लेट्स गेट ऑल द फ्रूट्स डाउन एंड ईट। The second friend says, no, no, no. Let's go to the biggest branch and get the fruits and eat. Let's cut the biggest branch down. The third friend says, no, let's go to the smallest branch. It has enough fruits to take care of our hunger. The fourth friend says, hey, hang on. We don't have to cut the branch. इस branch को cut करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो branch है उसके फल निकाल देते हैं। पांचवा friend कहता है, नहीं, सबसे छोटा जो ब्रांच है उसके फल निकाल देते हैं। और छठा फ्रेंड कहता है, नहीं नहीं, इतने सारे फल नीचे पड़े हैं, बस इसे ही खा के हमारी भूख को मिटा देते हैं। ये 6 लोग, यानी कि 6 भावनाएं हैं, 6 इमोशंस है। एक इमोशन वो जो कहता है कि सबको काट दो, मेरी भूख सबसे ज्यादा है, उसको फरमाया है हमारे लेशिया की सब्जेक्ट में अंदर। लेशिया होती क्या है? लेशिया कलर्स होती है। लेशिया इज अ कलर, द कलर ऑफ योर इमोशन, आपके भाव के कलर। इसको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, मगर पहले भूमिका क्रिएट कर रहा हूं। आपके भाव के जो कलर है उसको हम लेशिया कहते हैं। और ऐसे भाव जब हमारे दिमाग में आते हैं तो वो ब्लैक कलर का कलर एमिट करता है। ये वो लोग हैं हु आर क्रूएल, एंटी सोशल, कंपैशनेट नहीं है, जिसके अंदर मर्सी नहीं है, वो लोग ब्लैक लेशिया में जाते हैं। छठा वाला फ्रेंड जो कहता है सबको काट दो, पेड़ को ही काट दो। पांचवा वाला फ्रेंड से सबसे बड़ा डाली को काट दो, तो वो होती है ब्लू लेशिया। ब्लू लेशिया यानी कि नील लेशिया। यहां पर जो लोग ग्रीडी है, कनिंग है, प्राउड है, लेजी है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, वैसे लोग इस लेशिया के कलर के प्रभाव में रहते हैं। तीसरे में आती है कपोत लेशिया यानी कि ग्रे लेशिया। जो फ्रेंड कहता है नहीं, वो छोटा डाल को ही काट दो ना, दैट पर्सन कम्स देयर। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, डेस्परेट होते हैं, हमेशा सैड होते हैं, ग्लूमी होते हैं, वो ग्रे लेशिया में है। जो फ्रेंड कहता है नहीं, ब्रांच को काटने की जरूरत नहीं है, बस बड़े डाली वाले फल को निकाल दो, वो लाल कलर के तेजो लेशिया में है, जहां पर दीज पीपल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। दीज आर द पीपल हु आर केयरफुल ऑफ द एक्शंस। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी भाव जो होते हैं, वो भाव जो होते हैं वो लाल लेशिया वाले होते हैं। फिर हम जाते हैं पद्म लेशिया, जो कहता है कि छोटी डाली को निकाल दो, वहां के फल निकाल देते हैं, काटने की जरूरत नहीं है। तो दे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर काइंड, मॉरली अपराइट पीपल, बेनेवोलेंट, दे कैन फॉरगिव इवन एन एनिमी। वो होते हैं येलो लेशिया की भाव। एंड उसके बाद है व्हाइट लेशिया की भाव, जो व्हाइट शुक्ल कलर कहते हैं, जो पंच महाव्रतधारी होते हैं, जो राग और द्वेष से रहित होते हैं, जो समता के साथ जीते हैं, वो होते हैं व्हाइट कलर के लेशिया में। अगर अब तक की ये बातें समझ आई, सिंप्लिसिटी के साथ आपके दिमाग में गई, तो हाथ ऊपर करिए और कहिए यस और नो। ये आपने प्रवचन में सुना होगा यहां तक। यहां से भीतर वाला जो रहस्य है वो हमें समझना है, और आज समझाऊंगा। मेरे पास 40 मिनट है और बाकी काफी है हमारे पास। आराम से, प्यार से, अच्छे से हम इसको सीखेंगे आज। ये जो लेशिया है, ये जो कलर्स है, आपको दिखाई नहीं देते हैं। मॉडर्न साइंस आपके बॉडी का जो ऑरा है उसको देख सकता है मशीन्स के थ्रू। क्यों? बिकॉज ये दिखता है शरीर के ऊपर है। अब आप कहेंगे राहुल शरीर के ऊपर है मगर एक अद्भुत कैमरा लगता है। करेक्ट, यस, लगता है। बाकी की जो चीजें हैं उसके लिए भी अद्भुत कैमरा लगता है। साइंस ने आविष्कार किया नहीं किया है, महावीर प्रभु ने किया है, हां किया है। बता पाऊंगे? ऑफ कोर्स बताऊंगा।
तो क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे मान ले कि ये सब होता है, कैसे जान ले ये सब होता है। आई एग्री विद यू। 10-12 मिनट बोल चुका हूं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आपको दिखाने के लिए कि आपका शरीर है क्या जो आप नहीं देख पाते मगर है आपके शरीर में। मैं चाहता हूं कि अगले 30 सेकंड के लिए आप सब लोग जोर से ताली बजाएं। स्टार्ट नाउ प्लीज, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, keep going, 11 12 13, keep going. हाथ को यहां लाइए, धीरे से अपने हाथ को पीछे ले जाइए, धीरे से वापस आगे ले आइए और धीरे से पीछे और आगे, बहुत धीरे से, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ हाथ को आगे पीछे ले जाइए, घुमाइए, साइक्लिक एंटी साइक्लिक, वापस आगे पीछे। आपके दोनों हाथ के बीच में कुछ हो रहा होगा, जोर से कहना हाँ या ना। क्या था ये? इसको हम कहते हैं बायोमैग्नेटिक एनर्जी। वही जिसको हो गया ठीक, जिसको नहीं हुआ घर जाके ट्राई करना। इसको कहते हैं बायोमैग्नेटिक एनर्जी, जो आपके शरीर के अंदर है थी मगर आपको पता नहीं था। आपने इसके पहले हजारों बार तालियां बजाई होगी मगर आपको पता ही नहीं था कि ताली बजाने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मूवमेंट जो है वो संचलित होता है, ज्यादा ग्रो होता है और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है। वी डिडंट नो। वही एनर्जी जिससे ये मोबाइल फोन चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। दुनिया में 4 प्रकार की एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरी ग्रेविटी और 2 और है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जीज, व्हिच द वर्ल्ड इज स्टिल ट्राइंग टू डिस्कवर कंप्लीटली। ये आपके शरीर में था मगर आपको पता ही नहीं था कि ये आपके शरीर में था। बिकॉज आपको पता नहीं था उसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं था। आपको पता नहीं था का मतलब आप अवेयरनेस में नहीं थे, आपको उसकी अनुभूति नहीं हो रही थी। मैंने अनुभूति कराई, आपने देखा, आपको पता चला, बात में दम। तो इस बार ताली मेरे लिए बजाना जोर से। या गो फॉर इट, जोर से। ना स्टॉप। जब आपने ताली मेरे लिए बजाई तो ये क्या हुआ? What happened just now? जैसे आपने ताली बजाई, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। यस नो? ओ कम ऑन, जोर से यस नो। जैसे आपने मुझे अप्रिशिएट किया तो मैंने आपके शरीर में और आपने मेरे शरीर में एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है सेरोटोनिन। डॉक्टर साहब बैठे, आप पूछ सकते हो, when we appreciate someone, जब हम किसी की बढ़ाई करते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं, तो उसके शरीर में और आपके शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। और जो लोग रात को सो नहीं पाते हैं, आप सेरेने 0.25 mg लेते हैं, उसमें यही सेरोटोनिन होता है ताकि आपको नींद अच्छी आ जाए। जो डॉक्टर देता है आप खाते हो, आप देख पाते हो, आप उसको बिलीव करते हो। महावीर प्रभु ऐसी वाली बातों की बात नहीं कर रहे, महावीर प्रभु भीतर वाली बात कर रहे हैं। वो हम आपको समझा रहा हूं कि जो डॉक्टर ने नहीं किया वो मैंने आपके सामने करके दिखाया। अगर मेरे लिए ताली बजा सकते हो तो महावीर प्रभु के लिए कितनी जोर से ताली होनी चाहिए। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अब देखिए, आपने ताली बजाई अपने साथ, राइट? मैं थोड़ा बदलाव करता हूं एंड आई शो यू समथिंग एल्स। आपके आसपास कोई होगा, उस आसपास वाले किसी को भी अपना राइट हैंड लेकर उसको शाबाशी देके बोलना, जल्दी उठे, ऑल द बेस्ट, गुड जॉब। करिए 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 करिए। अब इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, कुछ हो रहा है, राइट? स्टॉप, लुक एट मी, स्टॉप, लुक एट मी, लुक एट मी। मुझे देखिए, आपके शरीर में मैंने एक और केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। सिर्फ टच करने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ने से ऑक्सीटोसिन आता है। अब आपके आसपास वाले को देखकर ऐसे करो, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, स्ट्रेस हार्मोन। ये आपके शरीर में, यहां पर मैं करवा सकता हूं, ये चुटकियों के अंदर आप खुद करते हैं रोज, मगर आपको पता नहीं है। जो पता नहीं है तो आप मानते नहीं है, मानते नहीं तो जानते नहीं है, जानते नहीं तो बस अंधविश्वास में जीते हैं। और महावीर प्रभु कहते हैं अंधविश्वास जैनिज्म नहीं है। जैनिज्म इज ज्ञान, प्योर ज्ञान, केवल ज्ञान और प्योर ज्ञान, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, विदाउट एनी परसेप्शन, जस्ट द वे द ज्ञान इज, द यूनिवर्सल ट्रुथ। दैट्स व्हाई आई लव महावीर। मेरा ये प्रेजेंटेशन है, मैं जैना के कमेटी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, 3 महीने मैंने प्रिपरेशन किया है। आप 3 दिन के अंदर इस प्रेजेंटेशन को लेकर सबको भेजिए, ये स्लाइड सबको भेजिए। लोग कहते हैं मेरा प्रेजेंटेशन मेरा नहीं है, महावीर प्रभु का है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं क्या छुपा के रखूंगा। जितना फैलाना फैलाओ, जैन धर्म को फैलाना है, जैन धर्म के ज्ञान को फैलाना है, बिकॉज वही तो उद्देश्य था महावीर प्रभु का। आई लव महावीर। I'll tell you why I love him, because he's changed my life forever.
अब तक की बात आपको समझ में आ रही है? बिकॉज मैं आपके भीतर जा रहा हूं, आपको बायोमैग्नेटिक एनर्जी समझाया, आपको केमिकल समझाया, आपको लगता है ये बंदा सही कह रहा है, करेक्ट? यस और नो? नाउ यू आर रेडी टू गो इन फर्दर। अब हम लेशिया की बात करते हैं। आपको एक चित्र बताऊंगा सो यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ये देखिए, दिस इज अमेजिंग। आई वांट टू कम अ लिटिल क्लोजर हियर। मस्कुलर सिस्टम ऊपर है, राइट? देख पा रहे हैं आप? मस्कुलर सिस्टम के ऊपर यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर फिर प्लैनेट, प्लैनेट के अंदर अर्थ, अर्थ के अंदर आपका अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर कन्वेंशन सेंटर के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम के अंदर मेंटल सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम। ये हम समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये 4 सिस्टम है। क्या है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन 1000 पीपल। इस सिस्टम हम देख सकते हैं, यू कैन सी इट, यू कैन फील इट। उसके बाद वाला जो फील्ड है वो सिस्टम नहीं है, वो फील्ड है, वो वाइब्रेशंस वाला है, जिसको आप देख नहीं पाते, महसूस कर पाते हो। मैंने करके दिखाया भी है अब यहां पर इसी मंच के ऊपर। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द फील्ड। और पहला फील्ड है लेशिया, जहां पर हमारे इमोशंस पैदा होते हैं। उसके भीतर जाएंगे तो आपको दिखेगा अध्यवसाय, उसके भीतर जाएंगे तो आपको दिखेगा कर्म का फील्ड, और उसके भीतर जाकर देखेंगे तो है सोल। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड लेट्स गेट दिस पॉइंट बिकॉज़ दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ये है हमारी आत्मा। आत्मा के चारों ओर एक फील्ड है जिसको हम क्या कहते हैं? कर्म का फील्ड, द फील्ड ऑफ कर्मा ओकशाय। ये है सोल। सोल के आसपास जो है वो है कर्म का फील्ड। कर्म के आसपास जो फील्ड है उसको कहते हैं अध्यवसाय। उसके आसपास जो है, उसके राउंड में जो है, उसको हम कहेंगे लेशिया। लेशिया के बाद आप देख पाते हो जो है एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड द बॉडी। डिड आई मेक सेंस? यस, नो? इफ आई मेक सेंस, रेज योर हैंड अप एंड से यस। नाउ कम्स द टफ पार्ट। मैं आपको कर्म कैसे समझाऊं, मैं आपको अध्यवसाय कैसे समझाऊं, मैं आपको लेशिया कैसे समझाऊं? दिस इज गोना बी रियली रियली टफ नाउ, राइट? So let's talk about this. पहले कर्म फटाफट करेंगे, okay? Because I want to really spend a lot of time on emotions and healing today. At least 20 minutes I want to give to that. But let's get this out of the way first. Because if you don't understand the science, you don't understand the logic, you will not believe. When you don't believe, वो अंधविश्वास, और अंधविश्वास जैनिज्म नहीं होता है। कर्म, सोल है। सोल के आसपास जो है वो एक लेयर है, वो लेयर है कर्म का। अच्छे कर्म तो पतला सा लेयर, बुरे कर्म तो जाड़ा सा लेयर। कर्म अटैच करते हैं, इट अटैचेस टू योर सोल। अब कैसे समझाए? समझ लो कि मैं बाहर एक मैदान में हूं, आई एम इन अ ग्राउंड। आई टेक अ बिग नाइस वॉल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट कमिंग, हिटिंग द वॉल, नथिंग इज हैपनिंग। आई टेक ऑयल एंड आई मेक अ सर्कल ऑन दैट वॉल। उस वॉल के ऊपर मैंने ऑयल से, तेल से एक सर्कल बना दिया। नाउ व्हेन द डस्ट कम्स, वेयर विल इट गेट स्टक? द सरफेस वेयर द ऑयल इज। यस और नो? आप सब सोल में मानते हो, इसलिए आप जैना में आते हो, तो आसान है समझाना। इट कम्स एंड इट टचेस। व्हाट टचेस इज व्हाट कर्मा इज, द फील्ड ऑफ कर्मा। अच्छा काम किया, अच्छे एटम्स टच होंगे। खराब किया, खराब आके टच होंगे। ज्यादा अच्छा, इट इज ऑल टचिंग। Did I simplify this for you? If yes, raise your hands up. Now the tough part, now the tough one. The more you get deeper, the tougher it gets. अध्यवसाय ये क्या होता है? मैं आपको कह दूं कि 3 महीने पहले मुझे ये शब्द की जानकारी भी नहीं थी। 43 इयर्स का हूँ, जैन धर्म को समझता हूँ, इतने प्रवचन में जाता हूँ, मगर ये शब्द पता नहीं था, लेशिया पता नहीं था। एंड आई फील सो सैड फॉर माई सेल्फ कि मैंने 43 इयर्स जिंदगी के गुजार दिए, आपने मुझसे ज्यादा। मगर ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, इनके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आपके ऊपर भी। बिकॉज अगर मैं आपको पूछूं, दिलीप भाई आपकी उम्र क्या है? 60। मैंने आपके शरीर की उम्र नहीं पूछी, आपकी उम्र कही है। You saw that? The whole question changes everything. Awareness changes everything. आपकी शरीर 63 ईयर की है, मगर आपकी आत्मा तो 63,000 ईयर्स की हो सकती है। समझने लायक बात है। अब ये जो अध्यवसाय है वो करता क्या है? तो देखिए, ये सोल है। सोल इज प्योर कॉन्शियसनेस। ये प्योर कॉन्शियसनेस बाहर आता है। जब ये बाहर आता है तो जो आपके कर्म के लेयर है उसके साथ मिक्स हो जाता है। अच्छे कर्म है तो अच्छे के साथ, बुरे है तो बुरे के साथ, और वहां से बाहर जाता है। ये सब वेव्स में हो रहा है, ओके? ऑल दिस इन वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस में होके सीधा जाएगा अध्यवसाय में। अध्यवसाय का एक सर्कल है, वो करता क्या है? आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश।
Your instincts resides in अध्यवसाय. आपके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, क्रोध का इंस्टिंक्ट, मान का इंस्टिंक्ट, माया का, डर का, वो जो इंस्टिंक्ट्स, उसके जो रूट्स होते हैं, वो कहां पर है? अध्यवसाय में, मगर दिखते नहीं है, वाइब्रेशंस में है. अब आप कहेंगे राहुल हम कैसे माने? महावीर प्रभु ने जो कहा वो तो मानेंगे ना. महावीर प्रभु को गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु हमें ये बताइए, क्या जब आदमी सोता है तो कर्म 18 पापस्थान के कर्म उनको लगते हैं? महावीर प्रभु ने कहा हाँ. तो गौतम स्वामी ने पूछा ये कैसे हो सकता है? तो महावीर प्रभु ने फरमाया कि when you are sleeping your mind is not conscious but अध्यवसाय is still conscious. अध्यवसाय is doing the work. तो what is अध्यवसाय? तो अध्यवसाय आपके सेल्स की अंदर की कॉन्शियसनेस को महावीर प्रभु ने समझाया. अब ये बात हम समझे कैसे? तो महावीर प्रभु ने ये भी कहा कि only human beings and evolved animals have a mind but other living beings like plants don't have a mind. You know this, yes or no? Oh, come on, say loudly, yes or no? My question to all of you is this: if plants don't have a brain, then how do they attract 18 पापस्थान के कर्म उनको कैसे लगते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्लांट्स को भी 18 पापस्थान के कर्म लगते हैं. And now, ladies and gentlemen, welcome to the world of research. अब मैं आपके सामने साइंस और साइकोलॉजी प्रेजेंट करूंगा, आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए how this is possible. दो चीज समझाऊंगा मैं आपको. एक, अध्यवसाय के अंदर आपके इंस्टिंक्ट्स छुपे हुए हैं. दूसरा, अध्यवसाय के अंदर आपका तेजस शरीर है, यानी कि all the energy is being built up in your अध्यवसाय. The entire energy, the powerhouse is in अध्यवसाय. मॉडर्न साइंस के 2 वीडियोस प्ले करूंगा, समझिए, देखिए आराम से. We have enough time, we don't know hurry. You are made out of 50 trillion cells, and the cells are the living entities. So you are a community, not a single person. Every cell in your body has minus voltage on the inside and positive voltage on the outside. Every live cell is a battery. Every cell has about 1.4 volts. 50 trillion cells in the body times 1.4 volts is 700 trillion volts of electricity in your body right now. 700 trillion volts where? In your body. You say, इतना मैं मैनेज कैसे कर रहा हूं? I'll show you हम कैसे मैनेज या मिसमैनेज कर रहे हैं उस एनर्जी को. साइंस, नॉमी. तो मैंने एक चीज तो समझा दिया कि एनर्जी जबरदस्त क्रिएट हो रही है. ये एक्चुअली बाहर वाली जिंदगी के थ्रू हमने अंदर वाली जिंदगी में क्या हो रहा है वो समझा. अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने कहा कि इंस्टिंक्ट्स जो है, इंस्टिंक्ट्स अध्यवसाय में छुपे हुए हैं और 18 पाप स्थानक उसके जो कर्म है इसको जुड़ते हैं. वो दिखाने के लिए मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा. आई टेल यू व्हाई आई लव अमेरिका. दुनिया का सबसे बड़ा जबरदस्त ज्ञान इंडिया में है. आध्यात्मिक ज्ञान सिद्धि से प्राप्त करते हैं. यहां अमेरिका में लोग डिग्री प्राप्त करते हैं, मगर व्हाई आई लव अमेरिका इज बिकॉज रिसर्च में जाते हैं जो हम इंडिया में नहीं कर पाते हैं. एंड टुडे आई एम टेकिंग द सिद्धि ऑफ इंडिया, degree of America to present to you Leshya. Enjoy India and America. Let's see the next video, please. Video 2.
ये आपके सामने मैंने प्रूव करके दिखाया महावीर प्रभु की वाणी जो कहते हैं कि अध्यवसाय इज द प्लेस वेयर योर इंस्टिंक्ट्स रिसाइड। और मैंने आपको दिखाया कि प्लांट्स के अंदर 18 पापस्थानक के कर्म को बांधने की क्षमता है अध्यवसाय के कारण। और वो आपने देखा यहां पर कि एक प्लांट के सामने मारा गया और वो प्लांट रिकग्नाइज कर रहा है उस बंदे को, क्योंकि ये डर रहा है कि शायद मुझे भी ना मार ले। 35 मिनट्स बोल चुका हूं। अगर इस ज्ञान के अंदर आपको कुछ डेप्थ और सही से साइकोलॉजी और साइंस समझ आ रही है तो मैं चाहता हूं कि हर्ष उल्लास से हम ताली बजाएं, सेरोटोनिन क्रिएट करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और क्रिएट करे। व्हाई नॉट? फ्री का माल है, डू इट। बट द सब्जेक्ट डजंट एंड ओवर हियर, इनफैक्ट इट स्टार्ट्स ओवर हियर। अब तक मैंने कहा कि दिस इज द एनर्जी सोर्स एंड द इंस्टिंक्ट्स यहां पर रिसाइड करती है, ये है अध्यवसाय। अब जाएंगे मेन सब्जेक्ट के ऊपर। आई एम गोइंग टू स्पेंड 25 मिनट्स ऑन दिस, लेश्या। अब हम जाएंगे वो स्टोरी के वहां जहां पर मैं आपको लेके गया था। स्टोरी के अंदर 6 फ्रेंड्स थे, 6 फ्रेंड्स के भाव थे, उन भाव के अंदर 6 कलश थे। उन कलश को हम लेकर यहां लेश्या में डालते हैं। अब यहां पर भाव यानी इमोशंस, सो आई हैव टेकन दोस इमोशंस एंड आई हैव गॉट देम इनटू लेश्या। ध्यान से रहिएगा मेरे पास, दिस इज अमेजिंग, दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस जस्ट नीड्स टू गेट इनटू योर ब्रेन, दैट्स इट। यहां पर सोल है, यहां पर कर्म का एक लेयर है, उसके ऊपर अध्यवसाय का लेयर है, सब वाइब्रेशंस में है, कॉन्शियस एनर्जी है। यहां से हम जाते हैं, जब यहां आते हैं तो लेश्या है, ये फाइनल बॉर्डर है। लेश्या का ये बॉर्डर, एंडोक्राइन सिस्टम का ये बॉर्डर, यानी कि ये आपका जो शरीर आपको दिख रहा है, व्हाट यू कैन सी, द मैटर, व्हाट यू कांट सी इज हियर, ये पार्ट लेश्या, यानी कि दिस इज द कनेक्टिंग पॉइंट। दैट्स व्हाट महावीर इज स्पीकिंग अबाउट, दैट्स प्रोफाउंड। तो वो कह रहे हैं कि ये जो इंस्टिंक्ट्स यहां पर है अध्यवसाय में, वो इंस्टिंक्ट्स यहां पर आके फलान्वित होते हैं एंड द इमोशंस आर गेटिंग क्रिएटेड हियर, नॉट देयर इन द बॉडी, हियर इन लेश्या। गुस्सा आया, किसी को मारने का मन कर दिया, ब्लैक लेश्या। मारने का मन किया, ब्लैक लेश्या। आई एम गोना पॉज इट हियर, लेट मी जस्ट गो टू अनदर स्टोरी। आई एम गोना पॉज, वहां वापस जाएंगे, यहां आता हूं। Leshya means the ability to heal yourself by getting to understand how to balance your chemicals. Agree? I'm going to come back here. यहां से इसको पिकअप करते हैं। मैंने गुस्सा किया, डॉक्टर साहब, when I get angry, cortisol नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, ये सुनो। जैसे cortisol रिलीज होता है तो मेरी बॉडी की जो एनर्जी है, जो तेजस शरीर का एनर्जी यहां पर काम करना है पूरे शरीर में, वो शिफ्ट होकर हाथों में आ जाता है, यहां पर आ जाता है, सर में चला जाता है। ये जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, वो जो नॉर्मल केमिकल्स रिलीज करता है, वो रिलीज करना बंद कर देता है। ये ऑल एक्स्ट्रा एनर्जी यहां पर आती है ताकि योर बॉडी गेट्स इन कंट्रोल। योर एड्रेनलिन ग्लैंड इज पंपिंग थिंग्स अप देयर फॉर यू, योर हार्ट इज पंपिंग द ब्लड। The body goes into giving you the ability to manage the stress that the heart is taking up. So everything is imbalanced right now. When all this is imbalanced, the impact of what is the emotion which is here, the impact of what I said is being felt on your endocrine system, in your glands, in your body. And the message is passed through your nervous system. What happens really over here is when your system is completely out, now the nervous system gets impacted, and there are 2 ways. Either you're going to have mental problems or you're going to have a health problems which is in the body. And therefore यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं शरीर के, दिमाग के या फिर शरीर के। प्रॉब्लम्स कहां से हुए थे? एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल इंबैलेंस कहां से आया? यहां पर जो हुआ लेश्या में। लेश्या में क्या था? हमारे जो इमोशंस थे, वो इमोशंस फलन यहां पर वो क्रिएट हो रहे। वो इमोशन का बेस कहां था? यहां पर अध्यवसाय में इंस्टिंक्ट्स थे। वो इंस्टिंक्ट्स कहां से आए? कर्म से। कौन से कर्म उदय में आए? खराब कर्म उदय में आए। गुस्सा आया, आप उसमें गए, वहां से आप लेश्या में गए, लेश्या में आप कर्म गुस्से में गए, गुस्से में आपने गलतियां की, गलतियां करके एंडोक्राइन सिस्टम खराब हुआ, उससे आपका नर्वस सिस्टम इंबैलेंस होता है, उससे आपका शरीर खराब होता है, नए कर्म बंधन होते हैं। नए कर्म बंधन को वापस लेके जाओ, यहां पर जाएगा, ये वापस पीछे जाएगा लेश्या में, लेश्या से वापस कर्म में, और गहरा 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 कर्म का फील होगा, एंड सोल इज इन ट्रबल। डिड आई मेक सेंस? Question: can we fix this? Answer: I don't know, but Mahavir says 100%. I love Mahavir. Mwah. 20 minutes. I want to spend more time on this Leshya piece. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ये है सटल एनर्जी जहां पर लेश्या कन्वर्ट हो रही है इमोशंस के अंदर। तो राहुल, ये 6 कलर्स ही होंगे? नहीं, कलर्स बहुत हो सकते हैं।
राहुल हमेशा यही कलर रहेंगे? नहीं, ये कलर मिक्स भी होते हैं ना, ब्लैक रेड के साथ, रेड येलो के साथ, ये व्हाइट के साथ, ये मिक्स हो सकते हैं। कभी आप गुस्से में होंगे, 5 मिनट के बाद आप शांत हो जाओगे, दैट मीन्स यू कैन चेंज फ्रॉम हियर टू हियर। तो आपके कलर्स चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बाद आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल गो ऑन गूगल एंड लुक फॉर लेशिया सब्जेक्ट, यू गोना लुक एट कंटेंट। Bad news, we don't have quality content on Leshya available anywhere. Why are we going wrong as James is my question to everybody over here. Why such a profound subject is not being presented to our youngsters? Forget the youngsters, not even to ourselves. We have to research, we have to present our content in a modern way that people feel that, wow, there's nothing beyond Mahavir. We should do it. There is no content available. It's taken me 3 months and I've gone from places to places. I've stopped eating and I'm sitting in one place 8 hours, 10 hours, किताब लेके पढ़ता हूँ कि ये subject मेरे दिमाग में तो जाए. I'm passionate. I'm sorry. I just went out of the subject. Let's come back. Actually, I didn't go on the subject. I was in emotion anyway. There was emotion. शुद्ध emotion था तो कुछ कर्म मेरे खप जाएंगे आज. What's the beauty of what Mahavir says? I love Mahavir. Mahavir says, ये जो इमोशंस आ रहे हैं यहां से, ये इमोशंस कम विथ अ डायनामिक बैलेंस ऑफ ऑपोजिट्स। समझाता हूं, महावीर कहते हैं ये इमोशन ऐसे नहीं आ रहे हैं। जब ये हुआ तो किसी लोगों को लगा होगा, माय गॉड ये कैसे हो गया, इमोशन पैदा हुआ। किसी को लगा अच्छा हुआ, राहुल अभी भी काम है। किसी को लगा क्या फर्क पड़ता है, ये सब होता है, all the good and the bad happens, ना राग ना द्वेष, बस हम तो समता भाव में हैं। वैसा कोई नहीं था यहाँ पर, ओके। और महावीर प्रभु ये कहते हैं जो होना है वही होगा, टेक इट इजी मैन। महावीर प्रभु कहते हैं जो होना है वही होगा, टेक इट इजी। वी डोंट टेक इट इजी। सी, just going little off track to bring you back. This is how your Mahavir is, my Mahavir is. शांत। This is how you are. घर में वाइफ के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, बच्चों के साथ। महावीर तो ऐसे बैठे, नो क्रोध, नो मान, नो माया, नो लोभ। हम तो ऐसे बैठे, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा पैसा, मेरा घर। आप वो नहीं करते जो महावीर कहते हैं, आप तो वो करे जो आपको करना है। और फिर कहते हैं जैनिज्म का क्या फ्यूचर है, देखते हैं 21st सेंचुरी में क्या होगा, जो होना वो होगा। नहीं, जैनिज्म का फ्यूचर हम तय नहीं करेंगे, वो महावीर करते हैं। हमारा फ्यूचर हमें तय करना आज यहाँ पर। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। बैक ओवर हियर, लेशिया के अंदर इमोशंस कम विद द डायनामिक बैलेंस ऑफ द ऑपोजिट्स। अच्छे के साथ बुरा आएगा, क्रोध के साथ क्षमा आती है, पीस के साथ एंगर, पीस के साथ रेस्टलेसनेस आती है। यानी कि एक चाकू है तो किसी को मार भी सकते हैं, किसी का ऑपरेशन करके जीवन दान भी दे सकते हैं, वैसे आता है ये है यहां पर इमोशंस। आई लव महावीर, जस्ट सी व्हाट ही सेइंग। ही सेज जैसे ये उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, आग बबूला होने वाले हैं, तो एनर्जी क्या होगा, तेजस शरीर की एनर्जी इसमें लगेगी। आर यू विद मी? तेजस शरीर की एनर्जी इस एंगर में लगेगी एंड इट रियली स्क्वीजेस यू आउट। गुस्से के बाद पता ना क्या होता है, वो 700 ट्रिलियन वोल्ट का जो एनर्जी था इसमें लग रहा है। Now, when you're squeezing this end down, Mahavir says, don't do that. Because this is coming with the dynamic balance of the opposites. गुस्सा आया है तो क्षमा का भाव भी साथ में आता है। तो जो एनर्जी नीचे ले जा रही है उसको ऊपर ले जाओ। गुस्सा करने के बदले उसको क्षमा करो। मगर आप कहते हैं कि कैसे करो? महावीर प्रभु कहते हैं कि अध्यवसाय में जाओ। अध्यवसाय में इंस्टिंक्ट्स है, मगर प्रभु ये अध्यवसाय के इंस्टिंक्ट्स तो आ गए हैं कर्मों के कारण। बुरे कर्म यहां पर आ गए तो मैं गुस्सा करूंगा ना, मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। महावीर प्रभु ने कहा यहां जाओ, आत्मा के गुण के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्षमा है, दया है, करुणा है, प्यार है, सुख है। तो मैं क्या करूं प्रभु? इसको पुरुषार्थ के साथ इस गुण को यहां ले जाओ, इस एनर्जी को जो नीचे जा रही है उसे ऊपर उठाओ। ऊपर उठाओगे तो शांत हो जाओगे, समता में जाओगे। समता में जाओगे तो अध्यवसाय की एनर्जी यूज अननेसेसरली नहीं होगी। उसका इंपैक्ट शरीर पर क्या होगा? एंडोक्राइन सिस्टम खराब नहीं होगा, नर्वस सिस्टम खराब नहीं होगा।
तो आपका शरीर चलता रहेगा। हम मरते हैं 60 साल में, 80 साल में, क्यों? जैन धर्म तो आपके जीवन के लिए इयर्स, उम्र की बात ही नहीं करता है, सांसों श्वास की बात करता है। आपका जन्म हुआ तो जन्म के साथ 5,000 करोड़ एग्जाम्पल है, 5,000 करोड़ सांसों से ये डिश। अब आपको जीना है एंडोक्राइन सिस्टम में घुसे के साथ 50 तो चली गई। आराम से जियो ना, रिलैक्स। ये 500 नहीं गई, शरीर खराब नहीं हुआ, लंबा जियोगे। बट राहुल, लंबा काय को जीने का रे? लंबा इसलिए जीना है, मनुष्य भव मिला है। मनुष्य भव इसलिए मिला है कि वो कर्म की जो फील्ड्स है उसको हम हल्का करें ताकि वो सोल ऊपर चढ़ सके। अच्छा जीना है, स्वस्थ जीना है, तंदुरुस्त जीना है, भाव के साथ जीना है ताकि हम हमारे आत्मा का कल्याण कर सके। दैट इज वाई अच्छे से जीना है, बात में दम तो लेट्स सेलिब्रेट या वाओ। डिड आई मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? नाउ the next 11 minutes that I have, I'm going to show you something scary. ये है आपका शरीर, अध्यवसाय, लेश्या, कर्म, सोल छोड़ दिया। यहां से आगे चलते हैं, इस तरफ से ये वाला पकड़ता हूं। जैसे जैसे आपके लेश्या के भाव, यानी कि आपके लेश्या के इमोशन, गुस्सा आया, डर आई, वीकनेस आई, ट्रस्ट चला गया, तो होगा क्या आपके शरीर में? दिखाते हैं हम। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो डोंट इवन ट्राई, आई विल टेक यू थ्रू दिस। पहले चलेंगे हम ऊपर। थायराइड प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? थायराइड प्रॉब्लम दिख रहा है? वो थायराइड प्रॉब्लम क्यों आता है? जहां पर लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, और अगर आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, औरतें एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो आपको थायराइड आता है, हाँ या ना? डॉक्टर साहब, मेडिसिन हमको देनी ही पड़ती है बिकॉज केमिकल इम्बैलेंस है। मगर महावीर प्रभु ने कहा है कि जो केमिकल इम्बैलेंस आप मेडिसिन से देते हो, वह केमिकल बैलेंस आप लेश्या से कर सकते हो। और उसे कैसे करना है? जहां जहां प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दो। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी और फिर वो आपके शरीर में दिखाई देगी। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? इफ यस, रेज योर हैंड्स अप एंड से यस। अब देखिए, कुछ और बात करते हैं। एंग्जाइटी, बहुत प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह। वो ये है फियर का सेंटर जोन। यहां पर जब हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है, हमको लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई नए पार्टनर्स आ गए या कोई नया कंपटीशन आ गया और कंट्रोल चला गया। हमारे बच्चों के साथ हम बहुत प्यार से रहते हैं और बच्चे किसी और के साथ बाहर चले गए, हमारी बातें नहीं सुनते, कंट्रोल चला गया। हमारा पार्टनर ने धोखा दे दिया, कंट्रोल चला गया। तो ये कंट्रोल जाने से एंग्जाइटी पैदा होती है। इमोशन लेश्या के अंदर है, प्रॉब्लम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, और शरीर के ऊपर तकलीफ आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आपके, तो कहां जाएगा ये? आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो ये सीधा का सीधा आपके पीठ में जाएगा, यहां पर। यानी कि जो एनर्जी है, द एनर्जी विच इज सपोज टू फ्लो, द एनर्जी विच इज सपोज टू फ्लो इज नाउ गेटिंग इनटू अ जोन and it does not know how to express itself, so that energy is getting blocked in the body, and in that blockage of your body you are suffering. Mahavir says, why suffer? But प्रभु कैसे बाहर निकले? I'm going to show you how. पहले तो आपको दिखाओ कि आप सब कहां अटके हुए हैं। Close your eyes. Close your eyes and just listen to my voice. Get into the world where I'm going to take you now. अपनी आंखों को बंद करके, close your eyes and visualize the most insulting moment of your life. आपके जीवन का सबसे insulting moment अगर कोई था, किसी ने आपको नीचा दिखाया, आपको बुरा भला कहा, आपको इंसल्ट किया, देखिए उसे याद करिए वो मोमेंट को। I want you to visualize the moment where you were insulted, put down, or you really had to go through a horrific experience of your lifetime which was painful. Visualize the most painful situation of your life or the most insulting moment of your life. I want you to visualize the pictures. Where was this? Who was there? क्या हो रहा था? कैसे हो रहा था? I want you to visualize all the pictures. When you're visualizing the pictures, are these pictures in black and white or color? Are these moving pictures or are they still picture? Are they bright or are they dark?
Are they zoomed in or are they zoomed out? Visualize that. Now here, listen to what is going on. क्या हुआ था? किसने क्या बोला? कैसे बोला? कैसे शब्द थे? कितनी ऊंची आवाज थी? कितना क्रोध था? What was the anger like? What was the volume like? What was the pitch of that volume when someone was insulting you? As you experience these two things, you must be feeling the feeling in your body right now. ये जो आप experience कर रहे हो, उसकी feeling आपके शरीर में अब आप महसूस कर पा रहे होंगे. With your eyes closed, I want you to touch your right hand. अपना right hand, वो feeling जहां पर आपको महसूस हो रही है, where you can feel the feeling, put your right hand on that part of your body. सर पे होगा, shoulder पे होगा, chest पे होगा, पेट में होगा, कहीं तो होगा. वहां पर हाथ लगाओ. Open your eyes, look at me. Ladies and gentlemen, I'm not going to ask you anything at all, because this is not a moment to embarrass you, but I want to ask you a question again. Just say yes and no with me as a live audience, not as individuals. Did you see the picture? Say yes or no. If you did, I want all hands going up so that I know. Yes or no. Did you hear the volume? Yes or no. Did you feel the feeling? Yes or no. How many years back was this? 5 years, 3 years, 3 months, 3 days, 15 years, 20 years? That emotion is still blocked in your body. Now, if that emotion is blocked, what is happening is that the energy is getting depleted. But Rahul, how do you prove that to me? I will prove it to you. Just like the way your mobile phone works. And in this mobile phone, there are lots of apps which you're not currently using. Even though you're not using these apps, it is drawing the energy. You've got to learn to close these apps. Likewise, you have to learn to close those emotions, release that energy so the body can be free, and therefore the Leshya can get clean, and therefore the Adivasa is peaceful, pushing in the energy for your spiritual growth, which is what the soul needs. So it can go right up there. 700 trillion volts is also not enough. It needs a lot more, ladies and gentlemen, and which is the whole logic that I'm presenting to you. If I made sense, do clap and let me know. Create the biomagnetic energy. Whoa, it's amazing, isn't that? It doesn't end over here. Rahul, can you help me to release that now? With 5 minutes left, I can, but with 5 minutes left, I want to give you more solutions as well. But I'll tell you what is this technique I used right now. मैंने आपके senses को, जो senses आपके emotions को पकड़ के रखते हैं, वो मैंने आपको वापस महसूस करवाया. I helped you to understand where these senses are capturing the emotions and fixing it in your body. Did I make sense? I can help you release with a very simple technique of NLP, Neuro-Linguistic Programming, the manual of your brain. And I spent 12 months just to get this concept right so I can present it to you. We can do it now, like right now. For 5 minutes. Should I take a risk? Should I? Okay, give me a microphone, sir. Anyone volunteer? Quick, we don't have time. Anyone volunteer? Whom I don't know much. I need to talk to people who are... Yes, sir, please stand up. Sir, can I have the microphone here, sir? You got to really run. Okay, you got to go there, sir. Go there. Hurry up. Run! Look at that. Take the microphone in your hand. Wherever you are, the cameras will capture you, sir. What's your name, sir? Ashish. Ashish, close your eyes again. Close your eyes, visualize the moment. See the pictures. Feel the hurt. Touch the part of the body where the hurt is right now. Okay, keep it right there, sir. Talk to me. Keep your eyes closed, talk to me. How many years ago was this? Year. Good. Was this a moving picture or still picture? Moving. Color or black and white? Color. Bright or dark? Dark. The voice is loud or soft? Loud. Good. Now be with me. I want you to reduce the volume. Reduce it even more. Reduce it even more. And now I'm going to make this gibberish, okay? Whatever the person is speaking to you is telling you, make it gibberish. Gibberish. That's all you're hearing now. Look at the picture and freeze the picture. Give a border to this picture. Make it black and white. Zoom it out so that it gets really small. Zoom it out so it becomes small. Look at the picture. It's black and white. It's zoomed out.
Reduce the brightness completely and make it go like Sony Moni, right? Take a deep breath in, feel the feeling. Reduced, gone, or exactly the same? Gone. Say it again. Gone. Say it loud till they understand, they clap for you. Gone. Gone. Now, I don't want to tell you I'm a magician, and I don't want to tell you I'm a magician because Mahavir says, चमत्कार कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान होता है. I love Mahavir. He says it's only gyan. Till you don't know it's chamatkar. If you know it's gyan. I already told you beforehand. It's NLP's technique I'm using on him. NLP is the closest you can get to understand unresolved conflicts, and you can start resolving them. But how many will you do? Millions are there in your body right now. From the childhood you have been picking up, and I can tell you how many you have. And how do you resolve them? And Mahavir has answers to all of them. With 1.5 minutes left, I'm going to tell you how we do this, and I'll wrap it up for you, ladies and gentlemen. Mahavir Prabhu says, look, NLP is still a technique, you need someone. But Mahavir says, you need no one except yourself to go ahead and achieve the state of bliss. Khud kar sakte ho, Mahavir says, you need no one. How, Rahul? How? This is how. The moment, this is 1 minute and 33 seconds to go. I hope I'll wrap it up in that much time. Go quiet into yourself. Into the world where the mind and matter meets each other. And you start experiencing vibrations. In these vibrations that you experience, a lot of things of the past will come and they will go and they'll get resolved because your brain is way beyond everybody else's. It's going to feel the pain, allow it to go away. Because Mahavir says, don't express it, don't suppress it. Two different forms of psychology. You express it, you add more karma. You suppress it, you add more karma. Mahavir says, release it. But how do I release it, Mahavir? Mahavir says, just be quiet, allow it to happen. Just see it, drishta bhav. No rag, no dvesh, no attachment, no aversion. Just hang in there, just see, allow it to pass. When you shall open your eyes, at that point in time, what you need to do, you can open your eyes, and what are you going to do? Swadhyay. Read the right stuff. But I am meditating, I'm reading right stuff. Is that enough, Mahavir? Mahavir says, yes. You can also do tap, like upvas, like anshan, like vyasana, like ekasana. But how do I wrap it all up, Mahavir? Mahavir says 3 things. You need to have self-control over your food, which is what I was doing for 3 months before I could come here. Then Mahavir says discipline. You have to be in complete discipline of what you want to do with your life. Because when you create new habits, your muscular system reads that. When the muscular system reads that, your nervous system gets impacted. When the nervous system gets impacted, your endocrine system gets balanced and all the chemicals are released in the nice manner. And but that happens when the Leshya is being worked upon. When the Leshya is doing its job pretty well, allowing you to have the 2 emotions of dynamic balance of opposites, you make a choice of how you want to use it. The question was, Prabhu Mahavir, Atma ke gun mein kaise jao? Prabhu Mahavir says, Atma ke में जाना है तो ऐसे जाओ ऐसे जाने के बाद जब आप देख पाओगे नाराग ना द्वेष तो गुस्सा आएगा चला जाएगा समता ही रह जाएगी. This is the state you want to be in. Ladies and gentlemen, with my time being out, I'm going to take the last 30 or 60 seconds to wrap it up to tell you this. What Mahavir is saying is this: you need to do this. Immerse yourself in dhyan. You need to do this, swadhyay. You need to do that, tap. When you do these 3 things, आपके अंदर क्षमता आएगी. उसको हम कहते हैं प्रतिसंलीनता, यानी कि the ability to change the emotions and therefore push the energy up in the direction that it wants to. And once you learn to do that, your body is going to be fine. When your body is going to be fine, you will be able to work on your soul, because that is the ultimate objective, to experience divine bliss. This is Rahul Kapoor. Thank you very much.